السلام علیکم، میں ہوں مصطفیٰ احسان، آپ دیکھ رہے ہیں PNN ٹی وی۔ اسلام آباد کے ڈی چوک میں لانگ مارچ کے شرکاء ایک بڑی تعداد میں تعلیمی اداروں کی بندش کے خلاف سراپا احتجاج بنے رہے۔ اس موقع پر مرکزی چیئرمین کاشف مرزا، ندیم انور، چودھری شاہد اور عبدالسلام رضا سمیت مقررین نے ناقص پالیسیز اور امتیازی سلوک پر حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور فوری طور پر تعلیمی اداروں کو کھولنے کا مطالبہ کیا۔ شرکاء احتجاج کی ایک کثیر تعداد سے مقررین نے اپنے اپنے خیالات کے اظہار کے دوران مزید کیا کہا، آپ بھی سنیے۔ سلیم صاحب کی زیر قیادت آنے والے تمام مہمانوں کو اور قافلے کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لانگ مارچ کا میزبان ہونے کے ناطے ایک مرتبہ پھر سے آپ سے مخاطب ہوں اور اتنے بڑی تعداد میں ہمارے دوست، ہمارے لیڈر، ہمارے قائدین اور آل پاکستان پرائیویٹ سکولز اینڈ کالجز ایسوسیشن، آل پاکستان پرائیویٹ سکول فیڈریشن کے صدر کاشف مرزا صاحب تشریف لائے۔ کاشف صاحب کو ہم سب خوش آمدید کہتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں۔ ان کا چودھری شاہد صاحب کا، میں اپنے تاجر بھائیوں کا، میں جناب اجمل بلوچ صاحب کا، نعیم میر بھائی کا بہت مشکور ہوں کہ وہ تشریف لائے۔ رانا طارق صاحب فیصل آباد سے تشریف لائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق اللہ العظیم۔ قائدین محترم اور ملک بھر سے آئی ہوئے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے سربراہان، یہ تحریک جس کا آغاز ہم نے آج سے 10 مہینے سے 20 کو کیا تھا اور لاہور میں پاکستان کے تمام پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے ایسوسیشن کے مرکزی حضور کو جمع کیا تھا اور الحمدللہ پرائیویٹ سیکٹر نے اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کیا تھا۔ آج ایک دفعہ پھر پوائنٹ تاریخ کو پشاور میں دفاعی اسمبلی کے سامنے پاکستان کے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے تمام مرزا صاحب اسمبلی کا خیال کریں، انتظامیہ کے افسران آ رہے، پلیز آپ تمام بھائیوں سے درخواست ہے، آپ تمام بھائیوں WHO نے کہا ہے اور ماہرین صحت نے کہا ہے کہ بچے اور اپنی مرکزی قیادت کاشف مرزا کی قول کو مخالف کہا اور KP سے سلیم خان صاحب، عدیات خان صاحب نافذ سے ان کی بھرپور سپورٹ کرنے پر میں تہہ دل سے مشکور ہوں۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری آنے والی مشکل کو حل کرے۔ لیکن اس موقع پر ایک مختصر بات کروں گا۔ گجرانوالہ میں تعلیمی اداروں پر پرچے ہوئے اور ان کی وفاقی جو لکھی گئی وہ یہ تھی کہ اسکول کا وزٹ کیا گیا اور موقع پر اساتذہ کو پڑھاتے ہوئے پایا گیا۔ جو باتیں ہم اڈوں پر دیکھتے ہیں کہ رنگی ہاتھوں گرفتار ہوئے، آج بدقسمتی سے اساتذہ اسکولوں میں رنگی ہاتھوں پر آتے ہوئے گرفتار ہو رہی ہیں۔ میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں اور وقت حکومت سے التماس کرتا ہوں کہ عدالت کو کھولا جائے۔ شکریہ۔ لوگوں کا فاصلہ اور 100 کے قریب گاڑیاں نکلی تھی اور آج آپ لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے ہم لوگ آئے ہیں۔ ایک بات کرنا چاہوں گا، انوکھا لاڈلا وزیر اعظم کھیلنے کو مانگے ہمارے چانس سے بچوں کا مستقبل، اور میری یہ اسٹیج سے گزارش ہوگی اپنے حکام بالا سے کہ پلیز 7.25 سے زیادہ ہو گیا ہے، 7.5 کروڑ بچوں کے آئینی حق و غصب کیے ہوئے، آپ چاہے 2 دن کے لیے بچوں کو اسکول آنے کی اجازت دے۔ ہماری ریزولوشن یہ ہے کہ 2 دن کے لیے بچوں کو اجازت دے اور اسکولوں کو کھولا جائے۔ یہی میرا پیغام ہے اپنی طرف سے اور گجرانوالہ کی طرف سے اور اس سے پاکستان پائندہ باد۔ اس ملک کے
नलायक वजीरों, आओ आज इस टी चौक में आओ। आपको असातिज़ा पढ़ाने के लिए आए हैं, हुकूमत सिखाने के लिए आए हैं। आओ आज अपने असातिज़ा के पास, और जो सारी जिंदगी आप तालीम पढ़ पढ़ के पढ़ ना सके, आओ आज तुझे पढ़ाने आए हैं। आओ और सुनो, गिरानी की जंजीर पाँव में है, वतन कम कद्दर कटाओं में है, ताक पे है जबर की पहरादारी, क़यादत के मलबूस में है शिकारी। ये सियासत के फंदे लगाए हुए हैं, रोटी के धंधे जमाए हुए हैं। उठा नौजवानों, वतन को बचा लो, शरारों से हदे चमन को बचा लो। हम तुम्हारी रिट नहीं चैलेंज करते, हम तुम्हें आइन के ऊपर तुम्हें रिट को कायम करना क्या कहते हैं, वो है 25A आर्टिकल, जो कि ये कहता है कि हर 5 साल से 16 साल के बच्चों को उसका तालीमी आईनी हक मिलेगा और लाजमन मिलेगा। 2.5 करोड़ बच्चा मेरा आउट ऑफ स्कूल है, 5 करोड़ बच्चा जो स्कूल और प्राइवेट और पब्लिक में पढ़ता था, तुम लोगों ने उसका 1.25 साल से कोरोना के नाम पे उनका आईनी हक छीन दिया। 10 लाख बच्चों को जो उमरा के शराफिया के तुम्हारे हैं, उनको ऑनलाइन फैसिलिटी है। मेरा कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल का बच्चा एहतजाज कर रहा है, मेरा टीचर एहतजाज कर रहा है, मेरे स्कूल एहतजाज कर रहे हैं, और तुम ये कहते हो वो 4 करोड़ 90 लाख बच्चा जो है वो घरों में बैठे। क्या वो तुम ये समझते हो कि वो बच्चा हमारा पाकिस्तान का बच्चा नहीं? क्या तुम समझते हो कि वो पाकिस्तान के उतना ही उसको हक नहीं तालीम पे जितना तुम्हारी औलादों को है? कान खोल के सुन लो, ओ वजीरों, अपनी डगरे ठीक कर लो। अगर तुम अब भी नया बदलोगे तो याद रखो, ये तालीम के दरवाजे, ये तालीम का हक हम लेने आए हैं और लेके रहेंगे इंशाअल्लाह। मनीषा कहता है 4 करोड़ मेरा बच्चा मुतासिर हो चुका है, और एक भी तुमने कोरोना तालीमी इदारों से आइडेंटिफाई नहीं किया। आज तुमने हमारे बच्चों को, जिसको बुखार है, जिसको कोई थोड़ा सा भी नजला जुकाम है, तुम उसका कोरोना डालते हो ताकि तुम्हें जो 90 करोड़ डॉलर की इमदाद मिल रही है वो मिले। खुदा के लिए उन इमदाद लेने के चक्कर में हमारी औलादें बर्बाद ना करो। और रही बात ये, अगर आप ये समझते हो कि हम तुम्हारी गीदड़ भक्तियों से, हम तुम्हारी इन गीदड़ भक्तियों से डरने वाले हैं, तो भूत अपने दिमागों से ये अपना जो खबर है निकाल दो। आज हमें रोका गया, आज हमारे काफिलों को रोका गया, उनको गिरफ्तार किया गया। हम आपको उन काफिलों की, और जो तुम्हें गिरफ्तार किए हैं, जिन उस्ताज़ा को तुमने लाठी चार्ज किया है, जिनको तुमने थानों में बंद किया है, हम उसकी मजम्मत करते हैं और हिफाजत करते हैं कि हमारे असासा को रहा करो। हमारे लिए डूब मरने का मुकाम है कि हम अपना बच्चों का आईनी हक लेने आए हैं, तुम उन पे लाठी चार्ज करते हो, तुम उनको गिरफ्तार करते हो। तो कान खोल के ये बात सुन लो, आज का अलामिया सुन लो, मेरे तमाम कायदीन जो है, जीना होगा मरना होगा, डरना होगा डरना होगा, जीना होगा मरना होगा, डरना होगा डरना होगा, जीना होगा मरना होगा, डरना होगा डरना होगा। उस्ताद को इज्जत दो, उस्ताद को इज्जत दो, इज्जत दो। काशिफ तेरे जान साहब, बेशुमार किबरार तेरे जान साहब, बेशुमार बेशुमार तमाम रहनुमा तुम्हारे जान साहब। बेशुमार बेशुमार। अच्छा, मुझे ये अभी बताया गया है कि मुज़ाकरात का कुछ सिलसिला भी चल रहा है। बहरहाल अभी आपसे मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ, हमारे बच्चों का अब 2 बातें मांग रहे हैं। पहली बात, द नंबर 1, हमारे 7.5 करोड़ बच्चों को उनका आईनी तालीमी हक दो, जो कि रियासत, जो कि आइन उसको देता है, जो गारंटी करता है। ये हमारा है पहला मुतालबा। दूसरा, अब तुमने ये कहा है ना कि बच्चों को कोरोना है, हम तो SOPs पे अमल दरामद कर रहे हैं, घरों में बैठाया तुमने, कोरोना फैला, तो जो तालीमी अदारे SOPs के मुताबिक चल रहे हैं
वो खुलेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह वो हम खोलेंगे। और तुमसे हम क्या मांग रहे हैं? तुमसे हम मांग रहे हैं और खराज पे मिलने वाली वैक्सीन अपने घरों में बच्चों को लगवाते हो, तुम फिरते हो कि ये 7.5 करोड़ बच्चा भी तो मेरा है, ये भी इस मुल्क का है। इस 7.5 करोड़ बच्चों को वैक्सीन का हक दो, इनको तरजीह बुनियादियों पे वैक्सीन दो। और मेरा टीचर जो है वो फ्रंट लाइन का वर्कर है, उसी तरह जिस तरह मेरा मेडिकल का बहन भाई जो है उसका हक है, इसी तरह से मेरा टीचर भी उतना ही कीमती है, वो भी फ्रंट लाइन पे लड़ाई लड़ रहा है, उसको भी वैक्सीन दो और मुफ्त में दो। और तुम ये कारोबार इसको मत बनाओ, तुम इसको अपनी जेबें भरने के लिए तुमने इसको कमाने का जरिया बनाया है। ये खौफ पैदा कर रहे हो ताकि तुम लोगों की जो वैक्सीन है वो बिक सके। तो याद रखो, अब ये पाकिस्तानी कौम, उसका टीचर, उसकी सिविल सोसाइटी जाग गई है। अगर आज ये लॉन्ग मार्च जिसकी मिरास तुम लोग समझते थे कि सियासी लोग कर सकते हैं, हमने साबित कर दिया है। सिविल सोसाइटी उठ गई है, ताजर उठ खड़ा हुआ है, हमारा वकला उठ खड़े हुए हैं, हमारे स्कूल मालिकान उठ खड़े हुए हैं, टीचर उठ खड़े हुए हैं, स्टूडेंट उठ खड़े हुए हैं, पेरेंट्स उठ खड़े हुए हैं। लिहाजा अब ये देर तक तुम्हारे ड्रामे नहीं चलने। तुम कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। दुश्मन हुकूमत ना मंजूर, अलीम दुश्मन पॉलिसियां। जहाँ पे आपको लगता है कि आपके बहुत ज्यादा केसेस हैं, माइक्रो लॉकडाउन का ऑप्शन मौजूद है, हम ताउन करने को तैयार हैं। लेकिन मेरा बच्चा जो है उसको पूरे पाकिस्तान का 7.5 करोड़ बच्चों को फौरी तौर पे तरजीह बुनियादियों पे वैक्सीन दी जाए। मेरा टीचर चाहे वो पब्लिक स्कूल का है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल का है, चाहे वो कॉलेज का है, यूनिवर्सिटी का है, उसको भी तरजीह बुनियादों पर वैक्सीन दो। और अच्छी तरह ये सुन लो कि हमने ये फैसला कर लिया है और इंशाल्लाह इस पे कायम है। तालीमी अदारे हम खोल के रहेंगे, तुम रोक सकते हो तो रोक लो। और अगर तुम पकड़ तकड़ करोगे, अगर तुम एफआईआर दोगे अपने बाप पे, अपने उस्ताद पे, अपनी माँ पे, तो कान खोल के फिर ये भी तुम सुन लो कि तुम उस एफआईआर का जवाब हम लॉन्ग मार्च से फिर दोबारा देंगे और हम दोबारा धरने देंगे। अब ये धरने सिर्फ डी चौक पे नहीं होगा, अब ये धरना सिर्फ जो है इस्लामाबाद में नहीं होगा, ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद अकेले में नहीं होगा, मुल्क भर में होगा। और कराची में 12 तारीख को 12 तारीख को कराची के हद तक मैं आपको एक अनाउंसमेंट दे रहा हूँ। 12 तारीख को कराची के अंदर हम एक बहुत बड़ा धरना दे रहे हैं और ये धरने और कन्वेंशन का सिलसिला हम मुल्क भर में बढ़ा रहे हैं। और 12 तारीख को हम पूरा कराची बंद करेंगे। हम इंशाअल्लाह अपनी औलादों का तालीमी हक लेंगे। तुम हमारी औलादों का तालीमी हक बंद करोगे तो हुक्मरानों, हम तुम्हारे दरवाजों के आगे बैठ के तुम्हारे दरवाजों को बंद करेंगे और उस वक्त नहीं उठेंगे जब तक हम अपनी औलादों का आईनी तालीमी हक नहीं लेंगे। आप सब इससे मुतफिक हो? आपकी आवाज मुझे नहीं आई, मुतफिक हो? मुतफिक हो? और याद रखें, अगले लाएअमल का ऐलान जो है नेशनल सिविल सोसाइटी नेशनल एक्शन कमेटी के साथ मिलके, ताजर बरादरी के साथ मिलके, पेरेंट एसोसिएशन के साथ मिलके और लॉयर्स फेडरेशन के साथ मिलके हम बैठ के इंशाल्लाह इसका ऐलान करेंगे। लेकिन एक बात आपको बता दें, हमारे जो कन्वेंशन है, जो एहतजाज है, जो हमारे लॉन्ग मार्च है, अब वो हर सूबाई सतह के ऊपर सेंटर में होंगे। हर, चाहे वो लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है, कोयटा है, पेशावर है, मीरपुर है, मुजफ्फराबाद है, कहीं भी हम आप पाकिस्तान का जो सेंटर बनेगा वहाँ पे इंशाल्लाह हम ना सिर्फ इस एहतजाजी जो तहरीक है उस वक्त तक इसको जारी रखेंगे जब तक हमारी औलादों को आईनी तालीमी हक नहीं मिलता, और वो इंशाल्लाह हम हक लेके रहेंगे इंशाल्लाह।
اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں کی تفصیلات جاننے کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں pnntv.online اور رہی ہر خبر سے باخبر.